Yeah, good morning. All good. Yeah, So I am yeah, also fine. good. Yeah. So as today, I'm glad to be here, and I'm happy to give some insights on the API testing with all of you. So can we start sessions? Let me share my screen. So today we will go to cover the basic things because we know that we are already experienced candidates and we are working in the software testing. However, we are doing something, but basic concepts we are not clear. Like what we are doing, it's that related to the concepts, basically fundamental or foundations we are not clear. So today in this session, I will go to clarify some concepts like basic or foundation of the API testing, and then going forward, we'll see it in the practical way. So today, like I will explain you about what is API, what type of API testing, in API testing, what we are going to test, and these things. Then later on, we will cover up how we are going to test them. So is it fine? So let me share my screen first. And my voice is visible, na? Means I'm audible, right? Yes, Yeah, clearly. Great, great, yeah, yeah. yeah. Sure, fine. So let me share my screen. So please do let me know if you are able to see my screen. We can see. Fine. Thank you for confirmation. So let me today, like it's a general API related discussions, like what is API, what is in API, what are the concepts are there. So those things we will discuss today. And then first two sessions I will be discuss about like the theoretical concepts to understand what actual API is and what we do going to test in API. Then how we will conduct the testing, that will be part as a practical. We will see it later. So let me start with API. So first, before API, so let me normally discuss about what is software and those things. So as we are all working, so just software, we are thinking about software is that any application which we are executing is a software, but that's fine, is a software. But softwares are also, we can say, like any code which is running on any electronic devices like computer, watches, smartphones, and nowadays smart devices are coming, like smart bulbs are there and refrigerators. So all the daily needs or human using interaction devices are we can call it as the softwares which are running on those human interaction devices or systems. We can call this as a software. Generally, we think like any application which we are using, that is software. That was the old, we can say that old definition or old things. Nowadays, new technologies are coming up, new. Is it fine, like, if I will explain it in Hindi, or is fine that in English itself? All right. As You can use any language. that's fine ना, okay then good. So like हम लोग जो स्मार्ट वॉचेस वगैरह यूज कर रहे हैं, राइट, उसमें हम लोग स्टेप्स चलते हैं, तो जो स्टेप्स होती है वो हमको अपडेट करके हमारे स्मार्ट वॉच में दे देता है, एप्स भी होते हैं. सो लाइक दैट बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या जो भी ह्यूमन आज के डेट में इंटरेक्ट कर रहा है मतलब सिस्टम के साथ में, और जो चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. सो जस्ट एक बार हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ते हैं. मतलब मैंने नॉर्मली बताया मतलब कि सॉफ्टवेयर का जो यूज है वो वास्ट हो चुका है, मतलब काफी बढ़ चुका है आजकल. लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ मतलब बैंकिंग एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है, या फिर ई कॉमर्स एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है, ईआरपी एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है, या कस्टमर सीआरएम एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है. सो इट्स नॉट लाइक दैट. डिवाइसेस, बल्ब्स, और आजकल तो डिजिटल लॉकर्स वगैरह भी आ गया है. मतलब आप और हम लोग मतलब कैमरे वगैरह इंस्टॉल करते हैं और कहीं पे भी किसी भी लोकेशन से हम लोग एक्सेस करके देख सकते हैं चीजों को, तो वो जो सिंकअप हो रहा है, सिंक्रोनाइज हो रहे हैं. सो दिस आर ऑल आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. एंड नाउ इट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज कमिंग. सो जो हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, बल्ब्स वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह से कनेक्ट कर रहे हैं. आजकल इंदौर में भी आप लोगों ने देखे होंगे जो साइकिल यूज होती है आजकल, राइट. तो हम लोग जो है मतलब ये ई ग्रीन मतलब साइकिल्स को ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसमें कुछ अमाउंट पे करते हैं, प्लान्स लेते हैं, और हम लोग उसको ड्राइव करते हैं, ऑटोमेटिकली लॉक करते हैं तो वो सिंक हो जाता है.
तो like this everything is through the internet, it's going through with the Bluetooth and with the help of internet. So ये सब चीजें जो है मतलब थ्रू सॉफ्टवेयर हो रहा है, और इन सॉफ्टवेयर्स में कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिकली जो चीजें हो रही हैं, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये सब जो है एपीआईस वगैरह के थ्रू होता है, मतलब इंटरनली जो है मतलब एपीआईस यूज होते हैं जो ट्रैक करता है। तो सिंपल अगर हम लोग कहें, सॉफ्टवेयर जो एनी कलेक्शन ऑफ कोड विच आर रनिंग ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाइक यही जो हम लोग स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं, आजकल स्मार्ट बल्ब्स आने लगे हैं, हम लोग रहेंगे तो वो ऑन होगा, नहीं तो ऑफ हो जाएगा। और हम लोग जो मतलब फिटनेस वगैरह वगैरह के जो एप्स यूज कर रहे हैं या फिटनेस डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसमें ब्लूटूथ और इंटरनेट की हेल्प से हम लोग जो है सिंक कर रहे हैं डेटा को, और हम लोग उनको जो है मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। So this is under the software. So now the question is, as we are all software testers and we are doing the software testing, so what is the quality software? So quality software means हम लोग मतलब जनरली ये बोलते हैं कि वर्क फ्री सॉफ्टवेयर, या फिर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को मीट करे और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। सो जनरली वी कॉल इट एज क्वालिटी सॉफ्टवेयर, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मेजरमेंट इज नॉट, हम लोग क्वालिटी के मेजरमेंट को जनरली हम लोग नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि हर किसी पर्सन का अपना एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं और चीजें होती हैं। रिक्वायरमेंट जरूर मीट कर सकते हैं, अगर किसी ने हमको रिक्वायरमेंट्स दे दिया कि दीज आर माय रिक्वायरमेंट्स, प्लीज प्लीज डेवलप द सॉफ्टवेयर, फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट, दैट्स फाइन। बट एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो डिपेंड करती है, मतलब हाँ, अगर हमें क्लाइंट बता दे रहा है कि मतलब हमें इतने सेकंड में मतलब परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस या ये सिक्योरिटीज होनी चाहिए, लाइक अलग अलग डिवाइसेस में एक्सेसिबल होना चाहिए। आजकल तो इतने सारे डिवाइसेस वगैरह आ रही है, तो कंपैटिबिलिटी मतलब टेस्टिंग इट ऑन डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स। एक्सेसिबिलिटी मतलब कोई भी पर्सन इसे एक्सेस कर पाए, लाइक ह्यूमन डिसेबल पर्सन भी इसे एक्सेसिबल कर पाए। सो दिस ऑल आर लाइक एक्सपेक्टेशंस। बट अगर हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो डेफिनेटली कस्टमर के रिक्वायरमेंट और कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस जो है वो मीट होनी चाहिए, बट विद इन द टाइम होना चाहिए और रीजनेबल प्राइस में होना चाहिए। नॉट लाइक कि हम लोग मतलब उसको बहुत टाइम ले रहे हैं, मतलब कि गिवन टाइम पीरियड या डेडलाइन में हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी हमारा मतलब बेस्ट प्राइस है हम लोग उसके अंदर उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो देन कस्टमर और क्लाइंट विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो आज की डेट में टाइम और प्राइस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ विद इन द टाइम फ्रेम और एट रीजनेबल कॉस्ट ऑफ प्राइस अगर हम लोग चीजें मतलब डिलीवर कर रहे हैं और फुलफिल कर रहे हैं, देन वी कैन कॉल इट एज अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर इन टुडेस एरा। लाइक वी आर इन 2024, सो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे चीजें भी चेंज होते जा रही है, राइट? आर यू एग्री विद दिस? Yes. Yes. Right. Right. Yes. So do you have any questions here till this, like what is Internet of Things, softwares, or in quality software? It's simple only, just I am giving this in brief, like so that from basic when we will start understanding the things, it will be easier for us to be performing or doing the practical anything, right? So is it fine till here? Right. No questions from my side. Okay. So now in APIs, before going to APIs, let me understand the software architecture. It is very, very important to understand. Then we can able to correlate or perform the things efficiently or effectively, right? So software architecture मतलब क्या होता है? तो कोई भी सॉफ्टवेयर, हम लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वी नो दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होता है, मतलब डेवलपमेंट करने की भी एक प्रोसेस होती है और टेस्टिंग करने की भी एक प्रोसेस और एक्टिविटी होती है, ठीक है? बट जब डेवलप्ड होगा तब आप SDLC फॉलो कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब डेवलप्ड हो जाएगा तो देन आप मतलब जब डेवलपिंग कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो कर सकते हैं, और जब डेवलप हुआ चीजें तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे ओल्ड मॉडल में पहले वाटरफॉल मॉडल था, वी मॉडल हुआ करता था, अभी एजाइल मेथोडोलॉजी चल रहा है, ठीक है, एजाइल मॉडल्स चल रहे हैं मार्केट में। तो अभी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो है मतलब एक आर्किटेक्चर होता है, जो कि टेक्निकल आर्किटेक्ट होते हैं कंपनीज में, वो लोग क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है कैसे डेवलप करना है उनको, मतलब तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे डेवलप करना और कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है, दिस इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। द वे इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम
are distributed and executed called as software architecture. These architectures also known as tiers or layers. इनको हम लोग tiers और layers भी बोलते हैं. And each tier represents a specific level of software functionality and how it is implemented. So depends upon like कि ये कौन सा architecture है. 1 tier है, 2 tier है, 3 tier है, n tier architecture है. So depends on that जो है हम लोग इनको डिवाइड करते हैं. मतलब so हम लोग वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं, है ना. तो इनके आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है ये, मतलब किस तरह से डेवलप हो रहे हैं उस बेसिस में हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये 1 टायर आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है, 2 टायर आर्किटेक्चर है या फिर n टायर आर्किटेक्चर है. सो एनी सॉफ्टवेयर विच, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर रहे हैं उनको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं उस बेसिस में हम लोग उसको जो है डिफाइन करते हैं. तो थ्रू दी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है, और जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है वो उनको हम लोग टायर्स भी बोलते हैं और लेयर्स भी बोलते हैं. कुछ लोग इसे 1 टायर 2 टायर बोलते हैं और कुछ लोग इसे लेयर्स के फॉर्म में भी जानते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 1 टायर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैसा होता है. तो 1 टायर आर्किटेक्चर की बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे जनरली. तो 1 टायर में ये होता है, कोई भी एप्लीकेशन जो होता है ना, नॉर्मली क्या होता है कि यूजर जो है इंटरेक्ट करता है जो ब्राउजर के थ्रू करता है, मोबाइल ऐप स्क्रीन के थ्रू करता है, तो हम लोग उसको फ्रंट एंड बोलते हैं और उसको हम लोग क्लाइंट एंड भी बोलते हैं. फ्रंट एंड या क्लाइंट एंड जहाँ पे यूआई प्रेजेंट होता है यूजर्स के लिए. ठीक है, और फिर सेकेंड पार्ट होता है जहाँ पे फ्रंट एंड से मतलब क्लाइंट एंड से भी या ब्राउजर या मोबाइल स्क्रीन यूज करके यूजर जो है अपना इनपुट देता है डेटा को, और वो चीज जो है हम लोग उसको बैक एंड पे भेजते हैं. तो बैक एंड को हम लोग बोल सकते हैं मतलब सर्वर साइड या फिर डेटा स्टोरेज एरिया बोलते हैं, जहाँ पे सर्वर में मतलब जो है डेटाबेस में जो है यूजर का डेटा जो है स्टोर किया जाता है. तो 1 टायर आर्किटेक्चर में ये होता है कि जो फ्रंट एंड होता है और जो डेटाबेस होता है वो दोनों एक ही सिस्टम पे लाई करता है. मतलब वो एक ही सिस्टम में होता है, मतलब फ्रंट एंड भी सेम सिस्टम में होता है और बैक एंड भी जो होता है डेटा स्टोरेज मतलब जो होता है वो सेम सिस्टम में होता है. और उसमें जो भी मतलब लॉजिक्स लगेंगे मतलब डेटा में, वो लॉजिक भी वहीं पे ही मतलब यूज किया जाता है मतलब सर्वर पे. तो सर्वर एंड क्लाइंट बोथ आर व्हेन बोथ आर इन द सेम सिस्टम, देन दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इज नोन एज 1 टायर सॉफ्टवेयर. इसके अदर नाम भी होते हैं, इनको हम लोग मोनोलिथिक भी बोलते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं और स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं. तो ये ओल्डर डेज में बहुत ज्यादा मतलब यूज होते हैं. आजकल तो हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं बहुत सारे, जैसे हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो हमने जैसे 2+2 किए तो एक वेरिएबल में जो है पहला इनपुट 2 लिया, दूसरा इनपुट 2 लिया, दोनों को ऐड कर दिया और रिजल्ट हमने 4 शो कर दिया. वंस वी क्लियर इट देन इट विल बी इरेज्ड. तो यहाँ पे मतलब इस तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में ये होता है कि जनरली यूजर जो है इंफॉर्मेशन लेता है, मतलब कुछ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन से कि मतलब वो कुछ देता है और उसको उस इनपुट के बेसिस में उसे आउटपुट मिलता है. जैसे एमएस ऑफिस वगैरह हो गया, एंटीवायरस हो गया, ब्राउजर सॉफ्टवेयर हो गए. तो ये सारे जो होते हैं ये 1 टायर आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स हैं. और सिर्फ इतना समझना है हमको इस 1 टायर आर्किटेक्चर में, मेजर डिफरेंस जो होता है मेनली कॉन्सेप्ट जो होता है 1 टायर का वो ये होता है कि आप एक ही सिस्टम में आप जो भी इनपुट दे रहे हैं, आपको जो आउटपुट आ रहा है वो सेम सिस्टम से आ रहा है. हम ना तो कोई डेटा स्टोर करा रहे हैं कहीं पे, ना ही हम डेटा किसी चीज से फैच करके आ रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज आप समझेंगे ना, तो हम लोग जब एपीआई की डेफिनेशन बताऊंगा ना मैं, एपीआई और वहां पे मैं चीजें बताऊंगा तो आपको बहुत क्लियर होगा मतलब ये चीजें. तो 1 टायर में आपको नॉर्मली ये समझना है बस कि आपका जो यूआई है जहाँ से आप इंटरेक्ट कर रहे हो एप्लीकेशन को, वो और जो जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा आपको फैच होके आ रहा है या आप जो डेटा देख पा रहे हैं, वो पूरा की पूरा एक ही सेम सिस्टम में ही रहता है मतलब. तो ये क्लियर है 1 टायर आर्किटेक्चर में, और यहाँ पे किसी को डाउट है? Clear. क्लियर है. जस्ट Fine. लाइक तो जैसे हम कोई प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है लाइक एक्लिप्स में हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम्म. तो वैल्यू इनपुट करो एंड देन आउटपुट, तो जस्ट लाइक हम उसको भी फर्स्ट टायर बोल सकते हैं ना. राइट राइट, मीन्स आप इंटरनली लोकल में आप अपने एक्लिप्स वगैरह इंस्टॉल किए, वहां पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, देन आप क्लासेस वगैरह क्रिएट करके आप लॉजिक लिख रहे हैं, देन आप वहां से इनपुट दे रहे हैं और आपको जो आउटपुट मिल रहा है, तो दैट टाइम इट इज वी कैन कॉल इट एज अ 1 टायर सॉफ्टवेयर ओनली एट दैट मोमेंट. क्योंकि आपका जो सिस्टम है, जो डेटा है वो लोकल पे स्टोर है और लोकल से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है. जब आप इस चीज को थ्रू वेब सर्वर या फिर मतलब थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करके आप जब इसको मतलब प्लेस कर देंगे, देन we cannot call it as a 1 tier software architecture. राइट राइट Right? राइट.
तो हम लोग जो भी डेटा वगैरह स्टोर कर रहे हैं लोकली, देन इट इज नोन एज अ वन टायर सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है और जो सर्वर है वो दोनों ही एक ही सिस्टम है, मतलब वी आर यूजिंग ओनली वन सिस्टम फॉर इनपुटिंग द डेटा एंड गेटिंग द डेटा। इट्स क्लियर? यस, क्लियर। ओके ओके, सो एग्जांपल्स यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं हम लोग। तो वन टायर क्या, ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे टू टायर आर्किटेक्चर में। जनरली क्या होता है, देखो मैं टू टायर जाने के पहले ना एक थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी यूजर्स होते हैं वो एपीआई टेस्टिंग में ना बहुत खास चीज है, बहुत अच्छी चीज है कि ना हमको चीजें विजिबल नहीं होगी। अगर हम लोग ना फ्रंट एंड में यूआई में फील्ड्स देख रहे हैं कि ये रेडियो बटन है, हमको सेलेक्ट करना है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ठीक है, या फिर हमको इनपुट देना टेक्स्ट बॉक्स है। सो यूआई में चीजें विजिबल है और आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और आप क्या कर सकते हो, उन पे वैल्यूज देके आप एलिमेंट्स वगैरह मतलब लोकेट करके आप अपने लॉजिक्स लिख के आप कनेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो चीजें। जो एपीआई टेस्टिंग होता है उसमें आपको सर्वर साइड लॉजिक्स चेक करने हैं, आपको सर्वर साइड में, आपको फ्रंट एंड की चीजें नहीं चेक करनी, आपको चीजें विजिबल नहीं होगी, आप इनविजिबल चीजों को, वी आर गोइंग टू टेस्ट इनविजिबल थिंग्स, मतलब जो कि विजिबल ही नहीं है, मतलब राइट। आई एम ऑडिबल ना? बीच में मुझे थोड़ा सा ऐसा मैसेज आता है कि इंटरनेट अनस्टेबल है, तो आई हाँ, एम ऑडिबल, Audible. राइट? Yes, audible. राइट राइट। सो एपीआई टेस्टिंग में हम लोग इनविजिबल चीजों को टेस्ट करने जा रहे हैं। मतलब हम लोग जो है डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं ये चेक करने वाले हैं, डेटाबेस से करेक्ट डेटा फैच होके आ रहा है कि नहीं, हम लोग ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग को चीजें विजिबल नहीं होगी। तो इन एपीआई टेस्टिंग द we can say that the beauty is that we are going to test the server side things that is also not visible to us. Fine. ठीक है। तो यूजर क्या करता है कि जनरली इंटरेक्ट करता है, कुछ इनपुट्स देता है, फिर जो क्लाइंट सर्वर से, मतलब जैसे मोबाइल यूज करा हमने, मतलब क्लाइंट से वो फ्रंट एंड में यूआई स्क्रीन यूज करता है, थ्रू मोबाइल यूज कर सकता है, कंज्यूमर बोलते हैं हम लोग इनको। तो कंज्यूमर जो है वो मोबाइल हो सकता है, आपका ब्राउजर हो सकता है कंज्यूमर, आपके कोई टूल्स हो सकते हैं कंज्यूमर्स जैसे पोस्टमैन वगैरह हो गया, और अदर एप्लीकेशन सर्वर्स भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी जो एपीआई है, आपका जो डेटाबेस है, आपका जो डेटा है वो केवल पर्टिकुलर यूजर ही करे, वो ओल्ड डेज हो गए। मतलब पहले की चीजें होती थी, वेबसाइट होगी ना, जिसमें ये होता था कि आप मतलब एक वेबसाइट फ्रंट एंड में बना रहे हो, उनको मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो, मतलब अपने डेटाबेस से और सर्वर में लोकेट कर दे रहे हो, तो सिर्फ आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, आप ही का यूजर जो है अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो यूज करे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल ऐसा होता है कि आपका जो डेटा है वो कोई भी यूज कर सकता है, मतलब जो जो डेटा आपका चाहिए यूज करने वाला है उनको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। और जो कंज्यूमर है वो एक ब्राउजर हो सकता है यूजर के बिहाफ में, एक मोबाइल ऐप स्क्रीन हो सकती है, और एक अदर एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, मतलब दूसरे एप्लीकेशंस भी आपके डेटा को आपके सर्वर से कनेक्ट करके आपसे डेटा मांगेंगे या मतलब कुछ एक्शंस करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपके डेटाबेस में उसे अपडेट करो करके। तो कंज्यूमर्स जो है तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट उसमें। तो इसमें जो वन टायर आर्किटेक्चर में तो सिंपल सा यही था कि, और सर्वर में जो होता है ना बैकएंड में, वहां पे ना हम लोग बिजनेस लॉजिक्स लिखते हैं, मतलब जो भी डेवलपर्स होते हैं जो कोडिंग करते हैं ना, जो रिक्वायरमेंट्स होती है इसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, कोड करते हैं, उनको हम लोग बिजनेस लॉजिक बोलते हैं। और बिजनेस लॉजिक जो होता है वो एप्लीकेशन सर्वर में होता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो हम लोग वन टायर आर्किटेक्चर में तो हमको कुछ ऐसा जरूरत नहीं है, मतलब कि डेटा वगैरह स्टोर कराना है, कुछ करना है, और इनकेस कराना भी है तो हम लोग सेम सेम उसमें ही करते हैं। मतलब यहाँ पे हमको सर्वर सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती, सर्वर की नीड नहीं होती। तो इसमें सिंपल सा ये है, अगर कोई बोलेगा कि वन टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें जो फ्रंट एंड होता है और जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस सर्वर होता है, वो दोनों सेम सिस्टम में रहता है, मतलब लाई करता है, या व्हेन फ्रंट एंड एंड डेटाबेस बोथ आर इन सेम सिस्टम देन इट इज कॉल्ड एज वन टायर सॉफ्टवेयर। और इनके अदर्स नेम जो होते हैं वही होते हैं, मोनोलिथिक भी बोलते हैं इनको, मोनोलिथिक एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं, और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी होते हैं बोलते हैं, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट इसमें सेकंड। सो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे अब टू टायर आर्किटेक्चर और टू टायर सॉफ्टवेयर। सो अब इसमें क्या होता है टू टायर के केस में, कि फ्रंट एंड एक सिस्टम में होगा और हमारा जो डेटा स्टोरेज होगा वो दूसरे सिस्टम में होगा। मतलब जो बिजनेस लॉजिक और डेटा स्टोरेज वाली चीजें होंगी, अब वो हमारी जो होगी वो मतलब एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
कि टू टायर आर्किटेक्चर, इसको हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। टू टायर आर्किटेक्चर को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले इसमें ये था वन टायर में कि आपका जो फ्रंट एंड है, यूआई है, वो और जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो भी सेम सेम सिस्टम में होता था। अब यहाँ पे क्या होंगे, दो सिस्टम्स होंगे। ठीक है, टू टायर आर्किटेक्चर या टू टायर सॉफ्टवेयर में ये होगा कि आपका जो लॉजिक है अब वो डिवाइड हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि आपका जो फ्रंट एंड है जहाँ से आप इंटरेक्ट करने वाले हो एप्लीकेशन में, आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, ब्राउजर हो गया, वो एक सिस्टम में रहेगा। और जो सर्वर होगा जहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे या फिर मतलब जहाँ पे डेटा जहाँ से लेके आएंगे वो अनदर लोकेशन में होगा। तो उसको हम लोग सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। हमेशा याद रखना कि क्लाइंट कंप्यूटर वो होता है जहाँ से यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पोस्टमैन की बात करूं मैं, या फिर मैं ब्राउजर की बात करूं, या मोबाइल ऐप स्क्रीन की बात करूं, या कोई भी मतलब एप्लीकेशन जो अनदर कंज्यूमर है जो हमारे सर्वर को यूज करेगा, एक्सेस करेगा, उनको हम लोग कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो वो एक अदर लोकेशन में होंगे, और जहाँ पे डेटा हम लोग स्टोर करेंगे या डेटा जहाँ से लेके आएंगे वो दूसरे सिस्टम पे होगा, दूसरे। तो उसको हम लोग सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। इसको टू टायर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं और उसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो इसमें डेफिनेशन भी सिंपल यही लिखा है, द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द क्लाइंट हैंडल्स यूजर इंटरफेस व्हाइल द सर्वर मैनेजेस बिजनेस लॉजिक एंड डेटा स्टोरेज। तो जो भी बिजनेस लॉजिक वगैरह होगी वो भी कहाँ पे होगा, सर्वर कंप्यूटर में ही होगा। बट पिछले वाले वन टायर में ही होता था, जो भी बिजनेस लॉजिक है, डेटा स्टोरेज और यूआई है, वो सेम कंप्यूटर में होता था। अब यहाँ पे जो बिजनेस लॉजिक है और जो डेटा स्टोर कर रहे हैं हम लोग, वो कहाँ पे, सर्वर कंप्यूटर में, मतलब दूसरे कंप्यूटर में। और जहाँ से यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं, ब्राउजर्स वगैरह, वो हमारा क्लाइंट जो है वो दूसरे सिस्टम में है। So an application where the user interacts with the client and the server processes business logic and stores data. एग्जाम्पल वही है हमारे कि मतलब क्लाइंट्स के एग्जांपल्स ही हैं, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस हो सकती है, जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बल्ब वगैरह जो है ना वो। तो ये है हमारा टू टायर आर्किटेक्चर। अभी मतलब किसी को यहाँ पे कोई डाउट या क्वेश्चन हो कि वन टायर और टू टायर में डिफरेंशिएट करने में, या मतलब कोई कंफ्यूजन हो? टू टायर में एक मतलब क्लेरिफिकेशन लेना था। सो हाँ हाँ। यूआई है और बिजनेस लॉजिक एंड डेटा स्टोरेज, ये अपने मतलब कंपोनेंट्स हैं इसमें। और यूआई और आपका सर्वर में जो कनेक्शन बन रहा है वो लैन के थ्रू बन रहा है। तो हाँ मतलब एक ही प्रेमाइस में होगा तो टू टू टायर बोल सकते हैं इसको, या फिर मान लो कि सर्वर आपका कहीं और रखा है, आप उसे थ्रू वेब एक्सेस कर रहे हो, और आपका यूआई जो है वो आप कहीं पे भी यूज कर रहे हो, तो ये भी टू टायर का एग्जांपल है, या मतलब लैन होना हाँ जरूरी है क्या बीच में? हाँ। हाँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ। मतलब गुड क्वेश्चन ये कि मतलब हम लोग जो टू टायर आर्किटेक्चर होता है, इसमें मतलब हम लोग सेम प्रेमाइसिस, मतलब एक इंट्रानेट होता है, एक इंटरनेट होता है और एक इंट्रानेट होता है। इंटरनेट मतलब ये होता है कि मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स विच आर एक्सेसिबल, मतलब जो एक्सेस कर सकते हैं चीजों को। जैसे हम लोग जो फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हम लोग कोई मॉल वगैरह जाते हैं, राइट? तो जब मॉल जाते हैं तो हम लोग जो बिलिंग वगैरह करते हैं, तो वहां पे बहुत सारे सेल्स पर्सन होते हैं, मतलब 8-10 बिलिंग काउंटर्स होते हैं। ठीक है, तो इंटरनली लोकली जब हम लोग बिलिंग कर रहे हैं और हम लोग मतलब जब एंटर कर रहे हैं, मतलब स्कैन कर रहे हैं, तो वहां पे चीजें आती है, वो टोटल होता है, फिर हम लोग सेव करते हैं तो बिल आता है। तो वो है हमारा टू टायर आर्किटेक्चर, मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें ये सबके साथ शेयर नहीं हो रहा है, राइट? हम लोग जो भी बिलिंग वगैरह डेटा कर रहे हैं वो मतलब डी मार्ट और मेरे बीच की है, कस्टमर के बीच की है। और मतलब जो भी पर्सन है उसका बिल उसी के पास जाएगा, बट वो पूरा इन्फॉर्मेशन जो है केवल डीमार्ट के उस पर्टिकुलर स्टोर के पास रहेगा। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, मतलब इंदौर की ही बात कर ले, इंदौर में कितने सारे जगह डीमार्ट वगैरह है, राइट? फ्रेंचाइजेस वगैरह होती है एप्लीकेशन की। तो ये जो बिलिंग कर रहे हैं मतलब, और फ्रंट एंड से बिलिंग कर रहे हैं और डेटा मतलब स्टोर हो रहा है, जब प्राइस वगैरह आ रहा है स्कैन करने से, तो ये जो मतलब यहाँ पे जो आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं टू टायर आर्किटेक्चर। ये लैन के थ्रू होता है, मतलब लैन से कनेक्टेड होते हैं ये। और इनको मतलब हम लोग वेबसाइट वगैरह में नहीं करते, मतलब सभी के लिए कॉमन नहीं होता यूज करने का जो है ना। तो यहाँ पे इंटरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है मतलब टू टायर आर्किटेक्चर में। तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, मतलब ठीक है, जैसे बिलिंग सिस्टम्स वगैरह हो गए। गॉट इट। और कस्टमर के जैसे कॉल सेंटर वगैरह की बात करें, अगर हम लोग कभी आप लोगों ने पहले कॉल सेंटर में कॉल किए होंगे, उनको सीआरएम बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे ही मतलब सिम खरीदे, तो आपका एक फॉर्म फिल होता है, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म करके बोलते हैं, कैप नंबर। उसके बाद में आपको मतलब पूरी बैक एंड प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तो आपका मोबाइल एक्टिवेट कर दिया जाता है और आप कॉल कर सकते हैं। तो जैसे आप कभी कॉल सेंटर में पहले कॉल किए होंगे,
तो आपका नंबर से ना उनके पास डिटेल्स आ जाती पूरी, और वो आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं कि पहले तो ये पूछते हैं कि मतलब थैंक्स फॉर कॉलिंग टू एयरटेल, एयरटेल में कॉल करने के धन्यवाद, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। फिर वो जैसे ही आप बोलेंगे वो आपसे बोलेंगे कि आपका पूरा नाम जान सकता हूँ, आपका एड्रेस जान सकता हूँ, आपको पहले वेरीफाई करेंगे कि आप ऑथेंटिकेट पर्सन हो कि नहीं। तो वहां पे भी ना मतलब जो डेटा हो रहा है ना वो मतलब टू टायर आर्किटेक्चर में है। मतलब आपके पास में क्लाइंट है और सर्वर है, तो जो यूजर्स कस्टमर सपोर्टिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, उन लोग क्या करते हैं कि जस्ट फोन नंबर डालते हैं तो उनके पास में जो है डेटा पूरा आ जाता है। मतलब तो ये सब कनेक्टेड होते हैं थ्रू लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से। इंट्रानेट बोलते हैं ना, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें चल पाती हैं। मतलब आई थिंक यू गॉट योर आंसर, राइट, आई गॉट इट। फाइन ना। सो दिस काइंड, ये ओल्ड डेज में बहुत रहता था ये, मतलब ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, टू टायर आर्किटेक्चर, ये पहले चीजें, मतलब पहले के टाइम में इस टाइप के एप्लीकेशन बहुत चलते थे। अभी हम लोग आगे देखेंगे तो और ब्यूटी देखेंगे। अभी तो हम लोग थ्री टायर आर्किटेक्चर में जा रहे हैं, फिर जब हम लोग एंड टायर में जाएंगे ना, तो जब हम लोग को समझ में आएगा कि एक्चुअली मतलब वही चीज को मतलब नए नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये चीजें मार्केट में आ रही है, लाइक न्यू न्यू टर्मिनोलॉजीज वगैरह जो है ना। तो मतलब ये चीजें पहले ऐसे चलती थी, तो आजकल बहुत कम यूज होता है, मतलब टू टायर आर्किटेक्चर्स वगैरह जो है ना, ठीक है। इनमें 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 डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो हर जगह से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट। आपको आपका सिस्टम साथ में लेके जाना पड़ेगा कहीं यूज करना है तो, करेक्ट। करेक्ट। और किसी को डाउट है या टू टायर में, मतलब इस आर्किटेक्चर में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे अब चीजें डिवाइडेड हो गई टू पार्ट्स में। फ्रंट एंड जो होगा जहाँ पे क्लाइंट या ब्राउजर से इंटरेक्ट करेंगे उनको हमने अलग कर दिया है, और एक और सर्वर हमने लिया जिसको हम लोग सर्वर कंप्यूटर बोल रहे हैं। वहां पे जो है आपका बिजनेस लॉजिक रहेगा, प्लेस्ड रहेगा, और डेटाबेस रहेगा, जिससे मतलब बिजनेस लॉजिक के थ्रू मतलब डेटा जो है मतलब स्टोर होगा, फैच होगा, अपडेट होगा, ये चीजें होंगी। और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि अब दो अलग अलग जगह पे, तो डेफिनेटली इनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। तो जो कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं वो थ्रू लैन करते हैं, और लैन मतलब एक इंटरनेट होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्सेसिबल होता है मतलब उस प्रेमिसेस में। कैन वी मूव टू नेक्स्ट आर्किटेक्चर? यस, यस। किसी को कोई डाउट तो नहीं अब यहाँ तक में भी? No. ठीक, साइलेंस मींस मैं टेकिंग इट नो। सो नेक्स्ट वी विल गो टू थ्री टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अभी बाद में जब इंटरनेट वगैरह चीजें डेवलप्ड हुई, बाद में चीजें आई, तो लोगों ने सोचे कि हम लोग क्यों ना लिमिटेड, मतलब हम लोग क्यों अपने चीजों को लिमिटेडली यूज करें, हम क्यों ना इसे वाइडली मतलब ले जाएं। तो देन इंटरनेट वगैरह कॉन्सेप्ट्स आए, तो इन चीजों को धीरे धीरे इन एप्लीकेशंस को फिर जो है वो वेबसाइट्स में मूव होना चालू हो गया, मतलब वेब एप्लीकेशंस में। तो वेब एप्लीकेशंस में हम लोग आगे बात करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन को हम लोग थ्री टायर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। इस थ्री टायर आर्किटेक्चर्स में ये होगा, अब चीजें जो है पहले दो जगह थी, अब चीजें जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स। यूजर इंटरफेस यूआई जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको यहाँ पे मतलब जनरली प्रेजेंटेशन लेयर बोला जाता है। और फिर एप्लीकेशन सिस्टम भी हो गया, मतलब जो बिजनेस लॉजिक है, जो पहले टू टायर में बिजनेस लॉजिक और डेटा स्टोरेज जो था ना, वो सेम कंप्यूटर में होता था, यहाँ पे भी उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। अब बिजनेस लॉजिक को भी एक सर्वर कंप्यूटर में रख दिया है, और डेटाबेस यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहा है उसको भी एक सर्वर कंप्यूटर में रख दिया, मतलब इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, आई थिंक अब विजिबल होगा। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर में थ्री लेयर्स में डिवाइडेड है, मतलब थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और आपस में ये सब जो है वो वैन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सो थ्री टायर आर्किटेक्चर में ये होता है कि जो यूआई होता है वो एक अलग होता है, जहाँ पे मतलब जिसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। हमेशा क्लाइंट जो होता है ना वो यूआई से इंटरेक्ट करता है, मतलब तो यहाँ पे क्लाइंट के केस में यूआई में होता है ब्राउजर हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है, कोई मोबाइल ऐप हो सकता है, कोई इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस हो सकती हैं जो इनपुट देगा, मतलब इंटरेक्ट करेगा अपने यूआई से। अब यहाँ पे जो बिजनेस लॉजिक है उसको भी हम लोगों ने एक अनदर कंप्यूटर, एक सर्वर कंप्यूटर में प्लेस कर दिया। मतलब जो भी डेवलपर्स अब यूज होंगे अपने जो बिजनेस लॉजिक्स वगैरह लिखेगा ना, वो क्या करेंगे अपने मतलब उन लॉजिक्स को हम लोग प्लेस कर देंगे एक सर्वर कंप्यूटर में, और डेटाबेस हमारा जो होगा वो एक अलग लोकेशन में होगा। मतलब तो यहाँ पे बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस जो है टू टायर में एक ही जगह पे था, उसको भी अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया थ्री टायर आर्किटेक्चर में।
तो इसको एक बार जस्ट नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं फिर इस पे हम लोग समझते हैं। तो अ वेबसाइट वेयर द प्रेजेंटेशन लेयर आल्सो नोन एज द क्लाइंट लेयर, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने देखा था कि मतलब ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में लेयर भी बोलते हैं और टायर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट वेयर द प्रेजेंटेशन लेयर ऑल्सो, नेटवर्किंग के टर्म में एक्चुअली इसको लेयर्स बोलते हैं और सॉफ्टवेयर के टर्म में हम लोग उसको टायर्स बोलते हैं, 2 टायर 3 टायर ऐसा। तो यहाँ पे लेयर की बात कर रहा है इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है प्रेजेंटेशन लेयर करके। तो वेबसाइट वेयर द प्रेजेंटेशन लेयर ऑल्सो नोन एज द क्लाइंट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूजर इंटरफेस टू द यूजर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया यूआई, ये एक लोकेशन में सिस्टम में जहाँ से यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसको क्लाइंट बोलते हैं। फिर जो हमारा बिजनेस लॉजिक है वो भी एक सर्वर पे प्लेस्ड है, बिजनेस लॉजिक को हम लोग सर्वर में प्लेस कर दिया जिसको हम लोग ना एप्लीकेशन लेयर्स बोल रहे हैं। द एप्लीकेशन लेयर कंटेन्स द बिजनेस लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन, इट प्रोसेसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आ रही है यूजर से उसको ये प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूट करता है बिजनेस रूल्स को, और फिर वो डेटा लेयर मतलब थर्ड जो होता है डेटा स्टोरेज, उसको यहाँ पे उन्होंने डेटा लेयर बोला। तो डेटा लेयर परफॉर्म्स द CRUD ऑपरेशंस लाइक कि आपको फेच करना है, गेट करना है कोई डेटा। CRUD मतलब कि आप रीड करना है, ठीक है, आप पोस्ट कर रहे हैं कुछ भी मतलब क्रिएट कर रहे हैं, आपको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, आपको डिलीट करना है। तो मतलब डेटा लेयर में क्योंकि डेटाबेस में ही स्टोर रहेगा जो भी डेटा होगा, तो यूजर के डेटा के साथ में जो भी चीज करेंगे हम लोग, जब जो भी चीजें प्ले अराउंड होगी, जो भी यूजर इनपुट देगा, उसको अगर कुछ नया रिकॉर्ड क्रिएट करना तो डेटा जाके स्टोर्ड होगा, उसको मॉडिफाई करना तो एग्जिस्टिंग डेटा में अपडेट होगा, उसको डिलीट करना है तो वो डेटाबेस से जाके डिलीट कर देगा, और उसको सर जस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए फैच करना है तो वो डेटाबेस में होगा। तो यहाँ पे 3 लेयर है।